यस, गुड इवनिंग जी। ठीक है, हम लास्ट क्लास के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी अल्कोहल एंड ईथर को कंपेयर कर लिया था। आज हम कंपेयर करेंगे ईथर और हाइड्रोकार्बन को। लिखो, इसमें आप लिखो ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लोअर ईथर्स, due to weak dipole dipole interactions the boiling points of lower ethers such as dimethyl ether, such as dimethyl ether, dimethyl ether CH3O CH3 dimethyl ether and ethyl methyl ether, ethyl methyl ether, dimethyl ether और ethyl methyl ether दोनों लिख दिया मैंने। ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लोअर ईथर सच एज डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर ओनली स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ एन एल्केन्स। ठीक है जी, ऐसा है। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, मैं बता क्या रहा हूं। देखो सुनो, इन दो का बॉइलिंग पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से कम होता है, स्लाइटली हाई होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ईथर्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे ना तो एल्केन से बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो जाएगा लगभग। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम आप और बढ़ाओगे ना तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा एल्केन के कंपैरेटिवली। ये ट्रेंड है, पहले लिखो। ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लोअर ईथर्स सच एज डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर ओनली स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ द एन एल्केन्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फुल स्टॉप करके the boiling point of diethyl ether, the boiling point of diethyl ether, इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर हो गया है एन एल्केन से, है ना। स्लाइटली हायर हो गया है एन एल्केन से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फिर मैंने लिया है डाई इथाइल ईथर यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है एन एल्केन के। ठीक है जी, पहला केस। दूसरा केस, तीसरा केस के अंदर एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट decreases as compared to alkane, as compared to alkane, as compared to alkane। ठीक है, अब लिखते हैं। मैंने आपको की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया, वही लिखवाऊंगा। ड्यू टू वी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लोअर ईथर सच एज डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर ओनली स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ एन एल्केन्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फिर मैंने आगे बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर इज अबाउट द सेम as that of an alkane, the boiling point of diethyl ether is about the same as that of an alkane, as that of an alkane, as that of an alkane having comparable molecular masses, having comparable molecular masses. However, as the hydrocarbon part increases, as the hydrocarbon part increases beyond 4 carbon atoms, however, as the hydrocarbon part increases beyond 4 carbon atoms, beyond 4 carbon atoms, the boiling points of ethers, the boiling points of ethers are even slightly, the boiling points of ethers are even slightly, the boiling points of ether are even slightly lower than N alkanes,
The boiling points of ethers are even slightly lower than n alkanes of comparable molecular masses. Of comparable molecular masses. Of comparable molecular masses because of the presence. Because of the presence. Because of the presence of oxygen atom. Because of the presence of oxygen atom. Because of the presence of oxygen atom, which makes ether molecules less symmetrical. Because of presence of oxygen atom, which makes ether molecules less symmetrical as compared to n alkanes. Less symmetrical as compared to n alkanes. Less symmetrical as compared to n alkanes having comparable molecular masses. Less symmetrical as compared to n alkanes having comparable molecular masses. N alkanes having comparable molecular masses. As a result, the van der Waals forces of attraction. As a result, van der Waals forces of attraction. As a result, van der Waals forces of attraction between ether molecules. As a result, the van der Waals forces of attraction between ether molecules are slightly lower than those in little more symmetrical. Slightly lower than those in little more symmetrical n alkanes. n alkanes having comparable molecular masses. लिख लिया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया, इस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है इससे कहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एन एल्केन का मतलब होता है जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही एल्केन लो. ऐसा एल्केन लो जिसका मास लगभग बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर हो. ये है इसका मतलब. फिर मैंने क्या करा, डाइथाइल ईथर ले लिया. इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से लगभग बराबर है. फिर मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ईथर का घटता चला जाएगा एज कम्पेयर टू एल्केन्स, एन एल्केन्स. क्यों भाई? ईथर के अंदर होता है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होने की वजह से जो ईथर का मॉलिक्यूल होता है वो आपका लेस सिमेट्रिकल हो जाता है. और आपने सुना होगा कभी जो लेस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है, और जो हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है. ये वाला कॉन्सेप्ट है. ख़त्म हो गया. नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है. अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ाया था सबसे पहले तो मैंने अल्कोहल और ईथर लिया था, उससे कंपेयर करा था ना. आइसोमेरिक आइसोमर्स थे ना दोनों. इधर भी वही पहले कंपेयर करूँगा. ऐसा ईथर ऐसा अल्कोहल जो दो एक दूसरे के आइसोमर्स हो, ऐसा ईथर ऐसा अल्कोहल जो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है. और उसके बाद अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते चले जाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका घटता चला जाएगा. और ये सॉल्युबल क्यों होता है ईथर वाटर के अंदर? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. भाई इसके पास ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन पकड़ लेगा, वो OH बॉन्ड बन गया. ठीक है. तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा और सॉल्युबिलिटी आपकी घटती चली जाएगी. लिख लो फटाफट से इसमें. ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स. ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स. Ethers containing up to 3 carbon atoms are soluble in water. Ethers containing up to 3 carbon atoms are soluble in water. The solubility of other lower ethers. The solubility of other lower ethers. The solubility of other lower ethers. The solubility of other lower ethers is comparable to those of corresponding alcohol. Is comparable to those of corresponding alcohols.
Ethers containing up to 3 carbon atoms are soluble in water. The solubility of other lower ethers in water is comparable to those of corresponding alcohols. ठीक है जी. उसके बाद आप लिख लो, एग्जाम्पल लिखना है, लिखो. चलो वैल्यूज़ लिखवा देता हूँ मैं सीधा सीधा. इथेनॉल, इथेनॉल और आपका कौन है, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर. ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, लिख लो. इथेनॉल, लाइक इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर, ये दोनों आइसोमर्स है. CH3OH, सॉरी 2 इधर आ जाएगा, CH3, ये दोनों आइसोमर्स है. तो आपको क्या लिखवाया है, लाइक इथेनॉल डाईमिथाइल ईथर इज कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर. लाइक इथेनॉल डाईमिथाइल ईथर इज कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर. फुल स्टॉप करके लिखो. द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर ईथर्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर ईथर्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर ईथर्स in water, the solubility of lower ethers in water is due to, the solubility of lower ethers in water is due to formation of hydrogen bonds. The solubility of lower ethers in water is due to the formation of hydrogen bonds, is due to the formation of hydrogen bonds between water, is due to the formation of hydrogen bonds between water and ether molecules as shown, and ether molecules as shown. The solubility of lower ethers in water is due to the formation of hydrogen bonds between water and ether molecules as shown. As shown, sorry, as shown काट दो. as shown तो डायग्राम ही नहीं बता रखा ना मैंने, वो काट दो as shown लास्ट में. उसके बाद लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, as the molecular mass increases, as the molecular mass increases, as the molecular mass increases, the solubility of ethers in water decreases. As the molecular mass increases, as the molecular mass increases, the solubility of ethers in water decreases. The solubility of ethers in water decreases due to a corresponding increase in the hydrocarbon portion. Due to a corresponding increase, due to a corresponding increase, due to a corresponding increase in the hydrocarbon portion of the molecule. Due to a corresponding increase in the hydrocarbon portion of the molecule. As the molecular mass increases, the solubility of ethers in water decreases due to a corresponding increase in the hydrocarbon portion of the molecules. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिख लो. Ethers are fairly soluble in, ethers are fairly soluble in, ethers are fairly soluble in common organic solvents. Ethers are fairly soluble in common organic solvents. Ethers are fairly soluble in common organic solvents such as alcohol, benzene, chloroform, such as alcohol, benzene, chloroform, such as alcohol, benzene, chloroform, acetone, etc. Acetone, etc. ठीक है जी. नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, जो ईथर्स होते हैं ना वो इनर्ट होते हैं, वो डाइल्यूट एसिड से, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से, रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ईथर के साथ ये सब रिएक्ट कर जाए, लाइक एसिड रिएक्ट कर जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट कर जाए, एटसेट्रा, तो आपको स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है. तो डालो हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. इसमें आप लिख लो, ईथर्स आर
inert compounds. Ethers are inert compounds as alkanes. Ethers are inert compounds as alkanes. Full stop करके. Under ordinary conditions, ethers are inert compounds as alkanes. Full stop करके. Under ordinary conditions, they are stable to bases. Under ordinary conditions, they are stable to bases. Comma dilute acids, comma catalytic hydrogenation. कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करना. डाइल्यूट एसिड्स, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन एंड टू मोस्ट अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स. Most other reducing agents such as lithium aluminum hydride, because functional group of ethers does not contain any active site. Functional group of ethers does not contain any active site in their molecules. Functional group of ethers does not contain any active site in their molecules. Functional group of ethers does not contain any active site in their molecules as compared to hydroxyl group of alcohols. Does not contain any active site in their molecules as compared to hydroxyl group of alcohols and phenols. As compared to hydroxyl groups of alcohols and phenols, even though the oxygen atom does not contain any active site in their molecules as compared to hydroxyl group of alcohols and phenols, even though the oxygen atom in both these functional groups contain two lone pairs of electron. Both these functional groups contains two lone pairs of electrons. Even though the oxygen atom in both these functional groups contains two lone pairs of electrons, however, under specific condition, ethers undergo the following reactions. However, under specific conditions, ethers undergo the following reactions. इसकी स्टोरी दोबारा सुन लो. जो ईथर्स हैं लगभग इनर्ट होते हैं, जैसे कि एल्केन में तो बड़ी कम रिएक्शन शो करते हैं. वो शो करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में शो करते हैं. तो ईथर्स बेसिकली इनर्ट होते हैं लाइक एल्केन. इस वजह से ना तो ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर पाते हैं, ना ये एल्कलीज से रिएक्ट कर पाते हैं, ना ये कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन शो कर पाते हैं. 1 2 3. ना ये कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन शो कर पाते हैं, ना ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर पाते हैं. आप ये सोचो कि जिस तरीके से अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, इन अ सिमिलर वे ईथर्स के ऑक्सीजन के पास भी तो दो लोन पेयर है. फिर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? तो रीज़न बताता हूँ, सुनो. इस वाले मतलब अल्कोहल के पास एक्टिव साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए, वहाँ पे एक्टिव साइट्स नहीं होती ईथर के पास. इस वजह से ये रिलेटिवली इनर्ट है अल्कोहल के कंपैरेटिवली. बट मैंने बोला कि ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में रिएक्ट कर जाता है, तो अब वही रिएक्शन देखने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन, मेन हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ ईथरल ऑक्सीजन, ये मेन हेडिंग है. और इसमें आपकी सब हेडिंग है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स. एक्शंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया ईथर, ठीक है। अभी जर्नल रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। आपने एसिड लिया, एसिड किससे डिनोट करा ना, HCl, अच्छा HCl ही ले लिया आपने, HCl लिया। तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, HCl से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, कंबाइन करा दो, RO R पॉजिटिव और H, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया ना, ये तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया, ये कीटाइन बन गया, तो कीटाइन के साथ अनाइन तो होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, Cl माइनस, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है डाइथाइल ईथर का, CH3 CH2 फिर ऑक्सीजन CH3 CH2, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर आ गया, आपने ले लिया HCl, क्या मिला आपको, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3 CH2 ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ पे लग गया आपका H, पॉजिटिव आ गया तो Cl माइनस भी होगा, Cl माइनस, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, रिएक्टेंट सेम ही है, CH3 CH2 CH3 CH2 डाइथाइल ईथर लिया मैंने, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। CH3 CH2 CH3 CH2, ये आपका आ गया ऑक्सीजन, सॉरी ये आपका आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस लगाओ, Cl माइनस, ओह सॉरी HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ठीक है जी। उतारो फटाफट से इसको, ऐसा करो, एक और हेडिंग सुन लो, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, एक और सुन लो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। देखो जी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आपके सामने ईथर ले रहा हूं, फिर से सेम ईथर है, CH3 CH3 CH2 फिर ऑक्सीजन, अपना 2 लोन पेयर आपने लगा दिया, CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करो BF3। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इसका काम इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, CH3 CH2 CH3 CH2, ये आपका आ गया ऑक्सीजन, ये गया लोन पेयर, ये बन गया आपका BF3, बन गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। और जहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH3 CH2, ये आपका आ गया ऑक्सीजन, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। होगा क्या, ये जो ईथर है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसे बनाएगा देखो जरा, RMgX, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा, लोन पेयर ऑक्सीजन, इधर ET और इधर ET, ये समझ आया। ET क्या लिखा, ET स्टैंड फॉर इथाइल, दूसरा O, इधर ET और इधर ET, ठीक है जी। और ड्राई ईथर डालना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप ड्राई ईथर नहीं डालोगे ना तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना मॉइस्चर से रिएक्ट करके एल्केन बना देगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए ये रिएक्शन अगर आप लोग करेंगे तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। ड्राई ईथर क्या करेगा, आसपास के एनवायरनमेंट से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी करो। ठीक है, इधर आप देख लेना, जैसे आपने BF3 यूज़ करा है, आप AlCl3 भी यूज़ कर सकते हो। लुइस एसिड यूज़ करना है बेसिकली आपने। अब बढ़िया रिएक्शन आने वाली है, डालो हेडिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब देखते जाओ कहानी,
अभी आपने लेट्स से सिमेट्रिकल ईथर लिया है ना, सिमेट्रिकल ईथर इन द सेंस मिक्स्ड सिंपल ईथर, सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर का कॉन्सेप्ट कराया था मैंने। आपने क्या करा, इसमें HX ऐड करा, क्या होगा देख लेते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। RO के पास अच्छे खासे लोन पेयर है, HX से H+ आएगा और ये इसके पास चला जाएगा, ठीक। आपका क्या बनकर आ जाएगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब आप खुद सोचो, ऑक्सीजन तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है पहले से ही, और आपने उसे प्लस लगा दिया, मतलब भूखा भेड़िया बना दिया, है ना। तो अब आप इसको पिक करो, RO यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव R, HX में से H+ निकल गया था, क्या बचा X-। अब सुनो, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा इधर, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और X- कहाँ पर अटैक करेगा, अभी तो दोनों R बराबर है ना, कहीं भी अटैक करा दो, यहाँ पर अटैक कराओगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, आपको क्या क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, RX। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ये इन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि मेरा आंसर आ गया है, मेरा आंसर आ गया है, क्या क्या बन रहा है, ROH बन रहा है और RX बन रहा है, मेरा आंसर आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस में ले लेता हूँ, HX को एक्सेस में ले रहा हूँ, ROR एक्सेस में ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेस। तो क्या होगा भाई, पहली बार में तो यही रिएक्शन होगी, सीधा सीधा वो लिख रहा हूँ इसको, हाँ आंसर लिख देता हूँ ऐसे, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ROR से HX रिएक्ट करेगा, जिसका हम मैकेनिज्म लगभग देख चुके हैं, और आपको क्या मिलेगा, ROH प्लस RX। बट क्योंकि आपने HX एक्सेस में लिया है, ये HX फर्दर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। किस तरीके से रिएक्ट करेगा, देखो ये रहा आपका HX, ये आपको डिसोशिएट करके H+ और X- देगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके पास गए, आपका क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। फिर आप लोगे ROH2 पॉजिटिव, ये आ गया आपका X-, ठीक है, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, RX प्लस वाटर। यानी कि कंक्लूजन क्या है, जब आप एक्सेस में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो RX मिलेगा और एक और RX मिलेगा, मतलब आपको 2RX मिलेगा। बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, मैंने सिमेट्रिकल अल्कोहल लिया, ईथर लिया है, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, बड़ा सिंपल सा है, CH3 CH2O CH2 CH3 एसिड डाला है इन्होंने जी, HI डाला है। इसका मैकेनिज्म कर देता हूँ, टेम्परेचर रखना है 373 केल्विन, क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो HI आपका डिसोशिएट करेगा किसमें, H+ और I- में, ठीक है। फिर H+ इसके बाद जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, ये गया आपका H+, ये इधर चला जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन ऊपर H, यहाँ पॉजिटिव CH2 CH3, ठीक है ना। अब इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ओ सॉरी, CH3 CH2 ऑक्सीजन ऊपर H पॉजिटिव CH2 CH3, किसका अटैक कराओगे, I- का अटैक कराओगे। मैंने क्या बोला था, SN2, तो I- तो इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। ये भी आपका लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, ये भी आपका लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है। SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब प्राइमरी वाले केस में बड़ी अच्छे देता है, करा दो कहीं पे भी, अभी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कहीं पे भी करा दो। तो क्या क्या बनेगा आपको, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है जी। अब इसी में इसने एक्सेस में ले लिया, इसी में इसने एक्सेस ले लिया है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन कर रहा हूँ, ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। अगर एक्सेस करूँगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और HI हो गया आपका एक्सेस में, क्या बनेगा,
तो भाई ये तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, है ना, टाइम नहीं ख़राब करूँगा। CH3 CH2I, ये तो मेरा बनना ही बनना है, प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, आपका जो HI है वो डिसोशिएट करके आपको क्या देगा, H प्लस और I माइनस। H प्लस किसके पास चला जाएगा, जाहिर सी बात है अल्कोहल के पास चला जाएगा। क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव। लास्ट स्टेप, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, I माइनस को बुला के लेकर आओ, SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर क्या बन जाएगा, CH3 CH2I। तो कहने का मतलब है अगर आप HI को एक्सेस में ले रहे हो तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ CH3 CH2I बनेगा। आया सर में कुछ, फटाफट से उतारो। मैंने आपको लग गया तो मैकेनिज्म में बता ही दिया, उतारिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।